Hello everyone, welcome back to my channel Commerce Assignment Help. Please subscribe my channel Commerce Assignment Help for more videos related to the accountancy. Today I will discuss with you some questions related to the partners capital account, that how partners capitals accounts are prepared when partners capitals are fixed and when partners capitals are fluctuating. In my last video I discussed with you that format of partners fixed capital account, current account, and when partners capitals are fluctuating. Partners capital account are prepared by two ways: when partners capitals are fixed and when partners capitals are fluctuating. When partners capitals are fixed, two accounts are prepared. One is partners fixed capital account and the other one is partners current account. And when partners capitals are fluctuating is given in the question, then only one account is prepared, that is partners capital account. Now come to the first question. L, M and N are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:3:5. On 1st April 2018, their fixed capitals were rupees 2 lakh, rupees 3 lakh and rupees 4 lakh respectively. Their partnership deed provides that the interest on capital at the rate of 9% per annum and interest on drawings at the rate of 12% per annum will be applicable. On 1st July 2018, L brought additional capital rupees 1 lakh and N withdrew rupees 1 lakh from his capital. During the year, L, M and N withdrew rupees 12,000, 18,000 and 24,000 respectively for their personal use. On 1st June 2019, the firm obtained a loan of rupees 1,50,000 from N. The net profit for the year ended 31st March 2019 after charging interest on M's loan was rupees 85,000. Prepare profit and loss appropriation account and partners capital account when capital accounts are fixed. क्वेश्चन को डिस्कस कर रही हूँ दोबारा. LMN तीन पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो गिवन है 2:3:5. उनकी कैपिटल फिक्स कैपिटल्स गिवन है 2 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख. डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम की रेट से अलाउ करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है 12% पर एनम से. 1 जुलाई 2018 को एल ने 1 लाख एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है और एन ने विथड्रॉ की है रुपीस 1 लाख. अब एन ने जो कैपिटल में से विथड्रॉ किया है इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट अप्लाई होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की रेट अप्लाई नहीं होगी क्योंकि कैपिटल में से विथड्रॉ करना इज नॉट रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. बट इसके बाद आपको एल, एम और एन ने विथड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए. These are the drawings out of expected profit. जो drawings out of expected profit होती हैं उन पर interest on drawings की rate applicable होती है. But in the question, time period is not given for the withdrawing of drawings. So average period will be taken as 6 months for charging interest on drawings. M ने 1,50,000 रुपीस फर्म को लोन प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन की कोई रेट नहीं दी हुई. अगर क्वेश्चन में कोई रेट नहीं दी होती तो 6% पर एनम की रेट अप्लाई होती है. लेकिन क्वेश्चन में हमें जो प्रॉफिट दिया हुआ है दैट इज आफ्टर चार्जिंग एम्स लोन रुपीस 85,000. इसका मतलब हमें क्वेश्चन में एम के लोन का इंटरेस्ट जो है वो काउंट नहीं करना क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी हमें उसको चार्ज करने के बाद का दिया हुआ है और ये चार्ज होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है. अगर हमें यहाँ चार्ज करना होता तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में पहले अपने प्रॉफिट को इंटरनल साइड पर लिखकर उसमें से इंटरेस्ट ऑन एम्स लोन लेस करके फिर मेन कॉलम में शो करते. लेकिन ऐसा हमें कुछ नहीं करना क्योंकि हमें प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन एम्स लोन दिया हुआ है. Now you have to prepare the profit and loss appropriation account. अब profit and loss appropriation account जो है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं? सबसे पहले प्रॉफिट की सिचुएशन हमें दी हुई है और प्रॉफिट की सिचुएशन जो दी हुई होती है तभी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाते हैं. अगर हमें लॉस दिया होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है. अब ये सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 85,000 प्रॉफिट इज गिवन तो ये क्रेडिट में लिखा जाएगा. And the other item which is written in the appropriation credit side that is the interest on drawings which is charged from the partners. अब यहाँ पे हमें फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो करना है तो जितने भी एप्रोप्रिएशन या जो पार्टनर से चार्ज किया जाएगा वो करंट अकाउंट के थ्रू होगा. एल
एन, तीनों की हमें ड्राइंग्स दी हुई हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है, लेकिन ध्यान देना है कि 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। जो भी हमें ड्राइंग्स दी हुई है इनटू में रेट अपॉन 100 इंटू 6/12, और इस तरीके से हमने तीनों की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। एल का 720, एम का 1018 और एन का 1440, और इसका टोटल हमने लिखा मेन कॉलम में 3240। इस तरीके से इन दोनों का टोटल करके 88,240 ये हमारा क्रेडिट साइड का टोटल आ जाएगा। नाउ कम टू द डेबिट साइड। डेबिट साइड में जो एप्रोप्रिएशन, जो चीजें पार्टनर्स को प्रोवाइड की जाती हैं फर्म के थ्रू डीड के अकॉर्डिंग, वो उनमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये चीजें होती हैं, कमीशन होता है, लेकिन क्वेश्चन में हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रूल ही अप्लाई करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले टर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा वो भी उनके करंट अकाउंट में प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि कैपिटल भी चेंजेस हुए हैं, एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस किया है एल ने, और एन ने अपने कैपिटल में से विथड्रॉ किया। तो सबसे पहले एल की कैपिटल पर कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। एल की कैपिटल 1 अप्रैल को जो हमें दी हुई है क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल दैट इज 2 लाख, लेकिन उसके बाद उसने 1 जुलाई को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। इसका मतलब 1 अप्रैल टू 30 जून यानी कि 3 मंथ्स के लिए इसकी कैपिटल होगी 2 लाख। 2 लाख पर 9% की रेट से 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, वो आएगा 4500, और 1 जुलाई से 31 मार्च तक उसकी कैपिटल जो है वो काउंट हो जाएगी। 1 लाख उसने इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल, अब उसकी कैपिटल 2 लाख से 3 लाख हो जाएगी, और 9% की रेट से 9 मंथ्स का इंटरेस्ट हो जाएगा 20,250, और टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 24,750। ये एल का हो जाएगा। ये यहाँ पर डेबिट साइड में इंटरनल साइड पर लिखेंगे जहां हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है, एल्स करंट अकाउंट करके 24,750। फिर कैलकुलेट करेंगे एम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एम के जो है डेट 1 अप्रैल को उसकी फिक्स कैपिटल दी हुई 3 लाख, एंड फॉर द ईयर, फॉर द होल ईयर द कैपिटल रिमेन्स फिक्स्ड। उसने ना तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, ना ही उसने विथड्रॉ किया है, तो 9% की रेट से पूरे साल का इंटरेस्ट लगा देंगे, दैट इज द 27,000। जब हम 12 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो इंटू में 12/12 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। तो इसका आ गया एम्स करंट अकाउंट 27,000। इस तरीके से ये डेबिट साइड पर यहाँ शो कर दिया जाएगा। फिर आइए एन पर। एन की 1 अप्रैल की जो हमें कैपिटल दी हुई है 4 लाख दी हुई है, और उसने 1 जुलाई को विथड्रॉ किया, यानी कि 30 जून तक, 1 अप्रैल टू 30 जून उसकी कैपिटल हो गई 4 लाख। 4 लाख पर पहले 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, वो आ जाएगा 9,000, और इसके बाद 1 जुलाई को उसने एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई है, बल्कि उसने कैपिटल विथड्रॉ की, यानी कि इसकी कैपिटल कम हो जाएगी। 1 लाख विथड्रॉ किया, 4 लाख से 3 लाख हो जाएगी। अब 3 लाख पर 9% की रेट से 9 मंथ्स का इंटरेस्ट हो जाएगा 20,250। दोनों का टोटल हो जाएगा 29,250, जो हम यहाँ पर एम्स करंट अकाउंट यहाँ लिख देंगे डेबिट साइड पर 29,250, और टोटल इंटरेस्ट करके कैलकुलेट हो जाएगा 81,000, जो मेन अमाउंट कॉलम में लिखा जाएगा। अब क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट साइड को बैलेंस करना है, तो जो डिफरेंस आएगा उसके कहते हैं टू डिविजिबल प्रॉफिट या टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, वो भी हम इनकी रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे तीनों के करंट अकाउंट में। एल के करंट अकाउंट में 1,448, एल के 2,172, एंड और एन का आ जाएगा 3,620, और 7,240 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नाउ look at the partners capital account. When partners capitals are fixed, then two accounts will be prepared: partners fixed capital account and partners current account. अब partners fixed capital account कैसे prepare किया जाता है? partners fixed capital account में नॉर्मली जो उनकी ओपनिंग कैपिटल होती है वही क्लोजिंग कैपिटल होती है, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हो आपको एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विथड्रॉ किए किसी पार्टनर में, तभी चेंजेस आते हैं। यहाँ एल और एन के कैपिटल में चेंजेस आएंगे, जबकि एम की कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। एल की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, ऐसा कोई भी रीजन जिसके कारण पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है, वो रीजन हम क्रेडिट साइड पे शो करते हैं। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे शो करेंगे, तीनों की जो हमें कैपिटल दी हुई है 2 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख। उसके बाद बाय कैश और बाय बैंक करके एल के कॉलम में 1 लाख लिख दिया जाएगा, क्योंकि इसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, और डेबिट में एन के कैपिटल में 1 लाख लिखा जाएगा, 1 लाख क्योंकि इसने विथड्रॉ किया टू कैश और बैंक करके। अब डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का दोनों का टोटल हम बैलेंस करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो डेबिट साइड पे हमारा बैलेंस सीधी आ जाएगा, और वो तीनों की कैपिटल आ रही है 3 लाख, 3 लाख, 3। अब बनाएंगे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि जितने बाकी भी अपने प्रोविजंस किए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, जो हमने पार्टनर से चार्ज किया, वो सारे के सारे आइटम्स करंट अकाउंट में शो किए जाते हैं।
करंट अकाउंट का हमें बैलेंस गिवन नहीं है। अगर गिवन होता, अगर डेबिट गिवन होता तो डेबिट में ब्रॉट डाउन करते, अगर क्रेडिट गिवन होता तो क्रेडिट में ब्रॉट डाउन करते। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई भी बैलेंस गिवन नहीं होता, बैलेंस गिवन है बट इट इज नॉट मेंशन दैट इट इज द डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, तो अंडरस्टूड होता है कि वो क्रेडिट बैलेंस ही होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कोई बैलेंस नहीं गिवन है, ना डेबिट और ना क्रेडिट, कोई भी बैलेंस गिवन नहीं है। तो उस सिचुएशन में सारे जो भी रीजन हैं जिनके कारण, अदर रीजन जो हम कैपिटल अकाउंट के अलावा जो फिक्स कैपिटल में शो नहीं कर सकते, वो सारे के सारे रीजन हम करंट अकाउंट में शो करते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो हमने शो किया, वो यहाँ पर लेकर आएंगे क्रेडिट साइड में तीनों का अमाउंट। इसके बाद हमने डेबिट साइड में नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, वो भी हम यहाँ पर क्रेडिट साइड पर शो करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में अगर पार्टनर्स के नाम से कोई भी आइटम शो की जाती है तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आ जाती है। डेबिट साइड में पार्टनर्स के करंट अकाउंट हो कैपिटल अकाउंट, उसमें तीन ही चीजें आती हैं, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लॉस। लॉस की सिचुएशन है नहीं तो यहाँ पे दो ही चीजें आएंगी, जो क्वेश्चन में ड्राइंग्स दी हुई आउट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में शो किया, वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट में आ जाएगा। और इस तरीके से क्रेडिट का टोटल करके हम डेबिट का टोटल उसमें से माइनस करके अपने अकाउंट्स को, LMN के अकाउंट्स को बैलेंस कर देंगे, जिससे उनका बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। Now come to the next question. AB started a partnership business on 1st April 2018. They contributed their capital rupees 6 lakh and rupees 4 lakh respectively as their capitals. The terms of partnership deed are as under. Partnership deed, partnership agreement की terms हमें दी हुई है। First, interest on capital and drawings at the rate of 6% per annum. यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें प्रोवाइड करना है पार्टनर्स को 6% की रेट से, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है। बी इज टू गेट ए मंथली सैलरी। अब जो बी है उसको हमने मंथली सैलरी प्रोवाइड करनी है अकॉर्डिंग टू द डीड, दैट इज 2500, यानी कि 2500 इनटू में 12। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यानी कि जितनी उन्होंने कैपिटल लगाई है उसके अकॉर्डिंग ही वो प्रॉफिट शेयर करेंगे। कैपिटल है 6 लाख, 4 लाख, इस तरीके से रेशियो आ जाएगी 3:2। The profit for the year ended 31st March 2019 before making above appropriations was rupees 2,07,400. Drawings of A and B were 48,000 and 40,000 respectively. दोनों की हमें यहाँ पर ड्राइंग्स गिवन है, and interest on drawings amounted to rupees 1,500 for A and 1,100 for B. और दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें कैलकुलेट करके दिया हुआ है क्वेश्चन में। You have to prepare the profit and loss appropriation account and partners capital account assuming that capitals are fluctuating. जब partners capitals are fluctuating होती है, हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह हमें दो अकाउंट नहीं बनाने, सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, दैट इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और उससे पहले हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिमिलरली जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट गिवन होता है क्वेश्चन में, दैट इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बाय नेट प्रॉफिट करके, जो हमें प्रॉफिट गिवन है 2,07,400 को यहाँ शो कर देंगे। और एक ही आइटम और दिखाई जाती है क्रेडिट साइड पर एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, दैट इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करके दिया हुआ है 1,500 एंड 1,100, दोनों का हमने ये टोटल कर दिया और टोटल करके आ गया 2,600। इस तरीके से क्रेडिट साइड का हमारा टोटल हो जाएगा 2,10,000। डेबिट साइड में बाकी एप्रोप्रिएशंस करेंगे। क्वेश्चन में हमें दो एप्रोप्रिएशंस दी गई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू बी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों की कैपिटल हमें 6 लाख दी हुई है, 6 लाख पर 6% की रेट से 6 लाख इंटू 6/100 36,000 ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और 4 लाख इंटू में 6/100 करके 24,000 बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा इस तरीके से 60,000। नाउ तो सैलरी टू बी 2,500 पर मंथ के अकॉर्डिंग बी को सैलरी देनी है, 2,500 इंटू में 12 30,000 ये आ जाएगा। नाउ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू द, अब नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2,10,000 है हमारा क्रेडिट साइड का टोटल, जबकि डेबिट साइड में हमारे पास सिर्फ दो ही आइटम्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, जिनका टोटल बनता है 90,000। 2,10,000 माइनस 90,000 प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 1,20,000। अब 1,20,000 को इनको जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन में है यानी कि 3:2 और उसमें डिवाइड कर दिया जाएगा। ए को प्रॉफिट मिलेगा 72,000 और बी को 48,000। अब बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसी तरीके से क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। अब क्रेडिट साइड पर सबसे पहले हम करेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। जब हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है वही लिखना है यहाँ पे 6 लाख एंड 4 लाख।
अब एप्रोप्रिएशन जो जो हमने की है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे हमने दिखाया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी के सेम यहाँ पर क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, वहां डेबिट में है, यहाँ क्रेडिट। फिर सैलरी दी है हमने बी को, तो बी के कॉलम में हम 60,000 सैलरी का लिख देंगे। उसके बाद हमने नेट प्रॉफिट दोनों को डिवाइड किया 72 एंड 48,000। और डेबिट साइड पर दो ही आइटम्स आएंगे, एक ड्राइंग्स और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्वेश्चन में हमें ड्राइंग्स की मैंने 48,000 फॉर ए एंड 40,000 फॉर बी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हमने एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में शो किया, जो हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दिया 1500 एंड 1100। इसके बाद क्रेडिट साइड पे टोटल करके डेबिट साइड पे टोटल को हम बैलेंस कर देंगे और उसका बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। ए का 6,58,500 और बी का आ जाएगा 4,90,900। Now I hope that you understand the question and now you are able to do the questions related to the partners capital account. Thank you.